Please hear me out. At NDTV, we demand end to this VVIP culture and hooliganism. Hence, NDTV campaign India Against VIP Thugs is asking you to raise your voice against any injustice. Time to show these political power leaders who are high on their power that the real people and their voice matter and they will get justice. Now imagine this, that you are on the street and some neta trashes you. Well, now is the time to speak up in support of this campaign that NDTV is running. Meanwhile, a food stall owner in Maharashtra's Thane district was beaten up allegedly by activists of a regional political party for not speaking in Marathi. A video of the incident, which went viral on social media, showed some of the attackers wearing scarves having the symbol of the Raj Thackeray-led Maharashtra Nav Nirman Sena. Now, NDTV spoke to the shopkeeper and he said that now he is living in fear. He was thrashed for not speaking Marathi. Now, what this NDTV campaign has really done is shine a light on something that strikes a chord with people all across the country. For how many decades has VIP culture, in this particular case, MNS goons, wantonly slapping an innocent shopkeeper, all because he cannot or refuses to speak Marathi for whatever reason, raining blows on him, slapping him, and like every bully in this country, doing it in a group of 5 to 7 people. We've got their names. NDTV is the only channel taking their names, putting its weight behind a story that deserves attention, because VIP thuggery, people associated with political parties, the thugs of MLAs or serving politicians and elected representatives in different parts of the country, feeling so entitled that they can, on camera, assault people in this manner, just shows you how far we've actually fallen when it comes to Lal Batti culture, when it comes to the political inequities that define our society. But I think what NDTV's campaign has really done by naming and shaming Raj Thackeray's goons, shining the light on the MNS and parties like it in Maharashtra, which have, instead of pointing their energies at the system, pointing their energies at innocent citizens, living their lives in peace and making a livelihood in a beautiful city like Mumbai, has sent out a national message. And I say that it has struck a chord because this kind of VIP entitlement and the casual violence perpetrated by people with power is something India has no place for anymore. And I think even though we've seen this kind of thing in the past, and here on NDTV as part of this campaign, we've counted at least 5 such instances in just the last few days. The names of these 5 people and their faces that we've put out on NDTV, and no other network has, mind you, really makes it the face of something that everybody wants to see the back of. We do not have any place for VIP culture. India will not tolerate VIP thuggery and goons of this kind any longer. सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं बाबूलाल जी, हुआ क्या था, किस बात को लेकर 5 लोगों को लगा कि अकेले आपके ऊपर इस तरीके से वो हमला कर सकते हैं? सर है ना, 29 तारीख को शाम को 10 बजे का टाइम था। मनसे पार्टी का है ना, हमारे जोधपुर स्वीट के सर्कल के सामने पूरा है ना 100-125 आदमी सब है ना झंडा लेके सब उनका कुछ प्रोग्राम था। वो सर्कल के जोधपुर स्वीट के सामने सर्कल पे 10 बजे सब प्रोग्राम कर रहे थे। और अचानक है ना 10:30 बजे 7-8 आदमी हमारे दुकान पे आते हैं और डायरेक्ट है ना गले पे जाते हैं और मेरे पास आते हैं और मेरे को बोलते हैं, जो आप दुकान चलाते हैं, आपके जो स्टाफ है हिंदी में बात कर रहे हैं, आपकी दुकान कौन से स्टेट में है? तो मैंने बोला हमारा दुकान महाराष्ट्र में है। उसके बाद में उन्होंने बोलते हैं कि कानपुर महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मैंने बोला कि सर महाराष्ट्र में सभी भाषाएं बोली जाती है। इतना कहने के बाद है ना वो सब है ना जो मनसे के कार्यकर्ता है सब मिलके मेरे को एक साथ में मेरे को मारते हैं और अच्छी तरह से है ना 10-15 मिनट तक मेरे को मारते रहते हैं। और उसके बाद में सामने से है ना बाद में 7-8 आदमी और आते हैं और हमको छुड़वाते हैं। सर है ना हम मीरा रोड में है ना सर कम से कम 20-25 साल से धंधा करते हैं। हम मराठी भाषा और कहने का मतलब महाराष्ट्र हमारा कर्म भूमि है, हम उनका स्वागत करते हैं, हम लोग उनका आदर करते हैं। हमारे में ऐसा कुछ नहीं मराठी के खिलाफ
हम लोग हमारे व्यापारी भी मराठी है, लेकिन इन्होंने जो मेरे साथ में जो किया, बिल्कुल। मैं तो एकदम फ्रेंडली उनसे बात कर रहा था, और अचानक है ना ऐसे बोलना खाली कि सभी भाषाएं बोली जाती है, पर वो लोग है ना सब मिलके एकदम अचानक मेरे ऊपर धावा बोल देते हैं। जी, किसी के साथ भी इस तरीके से घटना होगी तो आदमी जाहिर सी बात है डर जाएगा, सहम जाएगा। आप को भी अब इस बात का डर है, मतलब पहली बार मुंबई में रहते हुए आपको डर का एहसास हुआ कि आपके आसपास के लोग ही इस तरीके से आप पे हमला कर देंगे? हाँ जी, जैसा हमला किया ना साहब, अब ये काम करो, जो मैं दुकान में जो हमला हुआ है ना, वो दुकान में 3 दिन से मैं जाने बंद कर दिया। मेरे को ऐसा डर हो रहा है और ऐसा मेरा दिल अंदर से है ना मेरा टूट गया है, और ऐसा है ना मेरे बेइज्जती के हो गया था पूरा 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 है ना, जो वीडियो उन्होंने है ना पूरा वायरल किया, और एकदम मैं एकदम दिल से है ना वो हटा गिर गया है साहब। रेशमा जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। ये जो 5 लोग हैं आपके पार्टी के, जो एक दुकानदार जिसका नाम है बाबूलाल चौधरी, उस पर हमला किया, थप्पड़ मारा, उसको गाली दिया, क्या ये आप इसको सपोर्ट करते हैं? ये जो एक्शंस हैं, आप इसको सपोर्ट करते हैं? क्या है ना, आपको नमस्ते। सबसे पहले नमस्ते। कैसा है ना, हाँ, कोई भी अगर हिंदी में बोल रहा है तो ऐसा नहीं होता है ना कि हम लोग गए और उनको थप्पड़ मारा, ऐसे नहीं होता है। उसके पहले क्या घटा है ना, वो किसी ने नहीं दिखाया। क्या घटा है? ठीक है, उसके पहले क्या हुआ है, क्या घटा है? कि इसके पहले जो दुकान के मालिक है, उन्होंने महाराष्ट्र में कोई भी भाषा बोली जा सकती है, सिर्फ मराठी छोड़ के। नहीं, किसने ऐसा क्यों? नहीं, किसने बोला है कि ये कंपलसरी है कि वो मराठी में ही बोलेंगे? ये मराठी में क्यों नहीं बोलेंगे? लेकिन अगर महाराष्ट्र में कहाँ जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती है क्या? क्यों नहीं बोलेंगे? जबरदस्ती है क्या? ये कोई कानून है कि मराठी में ही बात करनी है? ये जबरदस्ती वाली बात सिर्फ महाराष्ट्र में पूछी जाती है। आपके लोगों ने जबरदस्ती की है मैडम? आपके लोगों ने हाथ उठाया, उसको मारा? आपके पार्टी के जो 5 कायर हैं जिन्होंने हाथ उठाया इस दुकानदार पर, भाषा में बात नहीं कर सकते। वो बुक हो गए अभी। नहीं, हमारे पार्टी में कोई भी कायर नहीं है। किसने हक दिया हाथ उठाने के लिए? किसने हक दिया? कहां पे कानून में लिखा है कि मराठी में ही का बात करनी है? किसने हक दिया आपके लोगों को? मुझे बताओ ना, मराठी में क्यों नहीं बात करना है? ये भी कानून में लिखा नहीं है ना। अरे मैडम, आपको पावर किसने दी है? आप तो पावर में नहीं है, आप तो सरकार में नहीं है, और बिल्कुल शायद नहीं होंगे भी। मैं मराठी तो किसने दिया आपको हक कि किसी और नागरिक पर हाथ उठाने का? यहाँ पे अगर आप रोजी रोटी कमाने आते हो तो यहाँ की भाषा का, यहाँ का किसने बोला? कहाँ लिखा है ये? कहाँ लिखा है ये? क्यों नहीं? संस्कृति कहाँ लिखा है? लिखा है क्या? आप कानून है क्या? अपमान करना लिखा है आप क्या? कानून है क्या? मुझे बताइए, कानून में भी लिखा रेशमा है क्या? जी, आप कानून है क्या मुंबई के, महाराष्ट्र के? आप मुझे आप कानून है क्या? यहाँ पे सुनिए मेरी बात। कितने सीट है आपके? कौन से कानून में लिखा है कि महाराष्ट्र में आके मराठी भाषा का किसने बोला है? किस कानून में? दो सवाल सुनिए मेरी। सर, 2 सवाल मैडम। कानून में लिखा है कि महाराष्ट्र में आके मराठी भाषा का अपमान करे? किस कानून में लिखा हुआ? कौन सा अपमान किया है? वो हिंदी में बात कर रहे थे, इसमें क्या अपमान है? इसमें क्या अपमान है? इसमें क्या अपमान है? वो दुकानदार है जो महाराष्ट्र में 20 साल के लिए काम कर रहे थे, वो टैक्स भरते हैं महाराष्ट्र में। फालतू की आप कौन होते हो? आपके जो मैं मराठी मानुस हूँ मैडम, आपका थका हुआ जो संगठन है उसको उठाने के लिए ये सब आप गुंडागर्दी करते हो। आपके जो 5 कायर लोग हैं जिनके नाम है हमारे स्क्रीन पे, हमारे पार्टी को एक तो सबसे पहले आपको कायर बोलने का राइट नहीं है। वो 5 कायर है मैडम। मैं फिर से बोलूंगा, मुद्दे पे है। सुनिए, मैं फिर से बोलूंगा, वो 5 कायर है, उनका नाम भी लूंगा मैं फिर से। वो 5 कायर है क्योंकि वो अकेले नहीं लड़ सकते। वो अकेले नहीं लड़ सकते मैडम। डोंबिवली में जब पर प्रांतीय लोगों ने मराठी कुटुंबों को मारा, तब आपके न्यूज वाले मैडम, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। आज कोई सुनने वाला नहीं है आपकी बात। कल की बात सर, मुंबई के लोग थक गए हैं। मुंबई के लोग जो एमएनएस जैसा इर्रेलेवेंट संगठन है, डेस्परेशन में ऐसे हरकतें करती हैं, मामूली नागरिकों को लेकर हमला करते हैं। क्या आप किसी उद्योगपति को लेकर आप मार सकते हैं? आपके गुंडों को भेजिए ना, कफ परेड।